Okay, so most of the places it is called human resource management. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स? रिसोर्स का क्या मतलब होता है? महक, कैन यू टेल मी व्हाट इज रिसोर्स? So resource can be described as anything which helps a company grow or helps in the growth of the company, and it can also be considered as a valuable asset to the company. नहीं, मतलब you are just talking with respect to human resource. I'm talking in a मतलब I'm asking the definition of resource in absolute sense. So moreover, you are quite right. मतलब anything which basically helps you in producing output. Okay. So what is the desired goal? Any desired goal is desired goal. One Supply can or consider. support. हाँ, desired goal can be called कि जो आपके processes हैं वो output complete करे, मतलब should produce the desired output. So anything which basically helps in getting those outputs. Or many of the time you also say that company's profitability is the profitability is the output, or production is the output, or anything matlab, which you consider output for that process or company. So any particular thing which helps you in getting those output is called your resource. So but this is a very new definition. Earlier we used to say anything which is in scarce, which is not available in abundant, is called resource. But that was incomplete definition, and anything which is in which is available all around us can also be acted as resource. Okay, so resource को हम ऐसे define करेंगे कि anything which basically helps in getting the output. तो और दूसरी चीज क्या है कि I'd also like कि how do you consider that human is a resource? How and why? बताओ महक, बोलते चले जाओ. So जैसे हमने अभी mention करा that resource is anything that produces a desired goal. So helps in production. हाँ. Any human being can be considered a resource when that individual is equipped with enough skills and or experience to produce the desired goal which is set by a company or a group of people or the individual himself. Okay, so that's fine, but let's go back to the definition of resource. For a company, which is in manufacturing company, ठीक है, and जैसे कोई भी एक food processing वाली company ले लो, तो food processing की company है, and what they do to they use wheat flour to produce some eatable item, ठीक है, let's say ये any noodle. So for this company, can we tell that flour is a resource? So rather than a resource वो material में आ जाएगा ना, मतलब raw material, but in a sense जैसे आपने पहली definition बोली थी उसके हिसाब से एक resource भी हो सकता है that anything that is there in abundance or scarcity और उसको हम use करके कुछ output निकाल रहे हैं. तो मतलब पॉइंट मेरा ये है कि बिफोर मतलब एज एन, जैसे हमने अभी तुमने बोला कि मटेरियल, मतलब एज एन मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, है ना. तो जैसे मान लो कि एक कंपनी है जिनका काम जो है नॉन स्किल्ड लेबर से होती है, नॉन स्किल्ड लेबर यूज होता है, ठीक है, एंड मतलब यू डोंट हैव टू ट्रेन देम और यू डोंट हैव टू बेसिकली make them comfortable with the business or processes. You can just use them as an labor for your company's processes. ठीक है, जैसे ईंट धोने वाले काम हो गए या कई सारे काम हो गए, तो उस प्रोसेस में जो मैन पावर यूटिलाइज होगा, है ना, मैन पावर यूटिलाइज होगा, कैन वी कॉल देम एज एन रिसोर्स?
So I think बुला तो सकते हैं, we can call them as a resource. In what circumstance they are resource or in what circumstance they are not? So if we talk about एकदम ऐसे formal setting में, तो usually human resources we would say कि जहाँ पे थोड़ा skill काम आता है वहाँ बोलेंगे, but otherwise अगर आप general sense में देखो तो any इंडिविजुअल या फिर कोई मशीन भी जो एक कंपनी में उस कंपनी को आउटपुट और ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, वो भी एक रिसोर्स होगा. बिकॉज अगर इफ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ कि लैक अगर ये होते ही नहीं तो फिर आपकी कंपनी चल ही नहीं पाएगी, तो इन दैट सेंस वो रिसोर्स है. ठीक है, परफेक्ट. मतलब यू आर सेइंग कि दो चीजें हैं, मतलब एज एन मटेरियल भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दे आर इजिली रिप्लेसेबल, बट अगेन इफ दे आर नॉट अवेलेबल तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस योर एनी मतलब आउटपुट, तो उस केस में यू हैव टू कंसिडर देम एज मैन पावर एज रिसोर्स. सो नाउ I'll also ask one मतलब different question here. Sometimes we call human as in capital, as capital. तो ह्यूमन एज मतलब योर वर्क पावर है ना, ह्यूमन एज रिसोर्स और ह्यूमन एज कैपिटल में क्या डिफरेंस है? एंड व्हाट इज मतलब बिफोर आस्किंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट इज कैपिटल? So I'm not very sure, but capital in terms हम monetary terms में भी देखते हैं कि मतलब मनी कैपिटल होता है, और आई थिंक हम रिसोर्सेस को भी कैपिटल कंसिडर कर सकते हैं. कई बार कर सकते हैं. इन व्हाट केस resources can be considered as capital? Your machineries are always your capital, है ना? Your all the tangible assets which are there, है ना, can be used as or it can be said capital. For a knowledge based economy, है ना, जैसे कोई कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक है, और एक आदमी है जैसे कंसल्टिंग कंपनी फर्म खोलता है, तो उसकी ऑल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन बी कंसिडर्ड एज कैपिटल. तो थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो यहाँ पे कि व्हाई समथिंग इज जस्ट रिसोर्स और व्हाई समथिंग हैज बीन चेंज्ड इनटू कैपिटल. तो मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया यहाँ मैं खुद से देता हूँ कि देखो, मनी कैन बी रिसोर्स आल्सो एंड मनी इज कैपिटल आल्सो. सो व्हेन एनी पर्टिकुलर रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और इंपॉर्टेंट इन से दैट इट बेसिकली used in utilizing other resources, है ना, they can be called as capital and they are not very easily replaceable. जैसे अगर एक कंपनी है, उसमें फैक्ट्री, तुमने मतलब एक फैक्ट्री लगाया तुमने और कई सारी हैवी मशीनरी यूज किया, so now this heavy machinery which was a resource now but is helping you to utilize other resources. समझ में आ रही है बात? Yes sir. तो इसको और ज्यादा अगर तुमको कंक्रीट अंडरस्टैंड करना है कि ऑपरेटिंग, तो जैसे कई बार फाइनेंस में हम क्या करते हैं, सो वी डिवाइड आवर कॉस्टिंग इनटू पार्ट्स, है ना. एक को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ से तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर इज ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, है ना. जो वो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं वो उसको कैपेक्स और ओपेक्स में बोलते हैं. तो मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो कि एक कंपनी मशीन खरीदती है या कोई फ्लोर बनाती है या फिर दे बाय अ लैंड टू पुट सम मशीनरी देयर और वेयर हाउस बनाती है, तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं, है ना, बिकॉज दे आर द फिक्स्ड कॉस्ट और दे आर गोइंग टू स्टे फॉर द मतलब दे आर गोइंग टू स्टे फॉर द फर्दर ईयर्स और दे आर देयर टू इंक्रीज द कंपनीज वैल्यूज. और एनी रिसोर्स विच इज कंज्यूमेबल, है ना, रेकरिंग जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं. ठीक है, ये पता है ना तुम्हें? Yes sir. ओके.
सो नाउ यू हैव बीन टू माई सेंटर, ठीक है, तुम मेरे सेंटर पे आई हो, वहां पे अगर मैं एक पेंट कराऊं, और तुम्हें पता है कि वाई मतलब कंपनी वांट्स ऑल देयर एक्सपेंडिचर टू बी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों? एक तुम्हें पहले, बिफोर गोइंग टू दिस एग्जांपल आई विल टेल यू देयर। जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हो, है ना, यू कॉल इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और व्हाट हैपेंस विद कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट वंस इट इज बीन डन, इसका एक डेप्रिसिएशन रेट होता है। सो एवरी ईयर फ्रॉम ऑल ऑफ माय प्रॉफिट आई विल रिमूव दैट डेप्रिसिएशन पार्ट, समझे? तो जैसे अगर हम 30,000 का कंप्यूटर खरीदते हैं, तो वो अगली साल उसका डेप्रिसिएशन होकर वो 21,000 बन जाएगा। 30% का डेप्रिसिएशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड पे, ठीक है। तो बेसिकली इफ आई हैव अर्न 10,000 एज अ प्रॉफिट, I'll say my profit is just 1,000. I'll remove that 9,000 from that list. So ये depreciation जो होता है basically मतलब helps companies to increase the profit which is non taxable. समझ रहे हो? उसको हम प्रॉफिट में काउंट ही नहीं किया ना, हम उसको डिप्रिसिएशन वाले अकाउंट में डाल दिए। ये बात समझ में आ रही तुम्हें? यस। तो बेसिकली एक 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 ये होता है कि हर कंपनी अपनी अकाउंटिंग में ऐसा चाहती है कि ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाए, बिकॉज दैट विल कम विद द डिप्रिसिएशन वाला सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। तो अब मान लो कि अगर मैंने अपने सेंटर पे पेंट कराया, तो वो किस एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए? कैपिटल में। नहीं, मतलब वियर एंड टीयर तो रेकरिंग में होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ। तो आना तो चाहिए रेकरिंग में, बट और ये मतलब कई बार ये होता है कि मतलब बट आई कैन मेक इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय क्लेमिंग कि इस बार जो पेंट हम करा रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट टू इम्प्रूव माय ब्रांड वैल्यू या ब्रांड इमेज। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली कैपिटल वो चीजें हो जाएंगी ना जो इजीली रिप्लेसेबल नहीं होंगी, और जिनसे आगे मतलब हम, जैसे आपने फैक्ट्री का एग्जांपल दिया था, तो वो हाँ, आगे मतलब हेल्प करती रिसोर्स है। यूटिलाइज करने में वो हेल्प करते हैं, है ना। हम्म। दे आर नॉट जस्ट मतलब रिप्लेसेबल और कंज्यूमेबल इन अ फास्ट पे, है ना, बार बार कंज्यूम नहीं होते, दे तो स्टेज पुट देयर। इनका इनका कॉस्ट भी फिर ज्यादा ही होगा ना, हाँ, नहीं मतलब कॉस्ट ऑफ कंपैरेटिव। कोर्स, हाँ कंपैरेटिवली कॉस्ट ज्यादा होगा। तो तुम जैसे देखोगे ना, एक और एग्जांपल हम बताते हैं कि जैसे एनटीपीसी वगैरह में जैसे वो वो होता है, मतलब जो डायनेमो घूमता है तो विंग्स के साथ घूमता है। तो जैसे वो खरीद सकते हैं तो मोटर अलग से खरीद सकते हैं, और एक 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 पूरा डायनेमो खरीद लिया, और बाद में जब भी वियर टीयर हुआ तो विंग्स खरीदा। तो वो ऐसा नहीं बाई करते, वो क्या करते हैं कि विंग्स एक्स्ट्रा खरीद देते हैं पहले ही साथ में, कि पहले हम खरीद लेंगे तो अगली बार जो मतलब यूज हम कर रहे हैं नया वाला विंग जो है वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपने जैसे अ, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मतलब उसमें क्या होता है कि हमने जो वियर टीयर होने वाले जो प्रोडक्ट वो होते हैं, एसेसरीज होते हैं, हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा जो प्राइस हमारा ऐड हुआ, दैट दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? हम्म। तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। तो एक थोड़ा सा ये पूरा जो एग्जांपल, ये पूरा एफर्ट जो था जस्ट ये समझाने के लिए था कि कैपिटल हैज अ डिफरेंट मीनिंग देन रिसोर्स, ठीक है। तो यस। अब हम आते हैं इस बात को समझने के बाद हम आते हैं हिस्टोरिकल उस पे थोड़ा इंसाइट पे, कि जब जो पहले भी हमने एक लेक्चर में पढ़ा है कि हाउ मैनेजमेंट हैज बीन इवॉल्व, तो अभी हम थोड़ा सा उसको एचआर के सेंस में बात करेंगे कि जब जब प्रोडक्ट कंसेप्ट हुआ करता था, याद है प्रोडक्शन कंसेप्ट था पहले, जब प्रोडक्शन कंसेप्ट हुआ करता था, when the entire management effort was there to increase the productivity of the company, क्योंकि उनको पता था कि जितने भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करोगे वो सारे बिकेंगे। याद है तुम्हें? यस। हैव यू अटेंडेड दैट लेक्चर जो मैंने लिया था, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम? समय पूरा नहीं देखा था, थोड़ा सा देखा था। उसको देख लिया करो ना, ऐसे नहीं करो। हम्म। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो भी मैनेजमेंट था हमारा, और उसका जो एचआर वाला पार्ट था, एचआर वाज एक एचआर और एक ऑपरेशन, अलग अलग मैनेजमेंट के पार्ट्स होंगे ना, तो ऑपरेशन वाज देयर टू इम्प्रूव द असेंबली लाइन, ठीक है। फाइनेंस वाज देयर टू इम्प्रूव द, जैसे होता है ना, रेकरिंग कॉस्ट कैसे कम करें, है ना।
तो सब मैनेजमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, तो HR वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देन, and the entire effort of HR management, and not the HR management, there we used to call labor relations, क्योंकि जो हमारा उस समय के प्रोडक्शन प्लांट था उसमें स्किल्ड मतलब सेमी स्किल्ड लेबर्स और नॉन स्किल्ड लेबर ज्यादा होते थे, ठीक है। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैनेज करना, उनके वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान देना, उनके मोटिवेशन को हाई रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके, वो सारी जो मैनेजमेंट के उस समय, और कैसे काम कराना है, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे होते थे, तो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई भी आया कि आप डांट के या पनिशमेंट इंसेंटिवाइज करके, नेगेटिवली इंसेंटिवाइज करके आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो या मोटिवेट करके बढ़ा सकते हो। तो मेनी पीपल वर लाइक कि दे आर नॉन मतलब इलिटरेट है, तो दे कैन बी यूज्ड एज नॉट लाइक एनिमल, बट दे कैन बी यूज्ड लाइक कि ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट ओरिएंटेड और नेगेटिवली इंसेंटिवाइज करो उनके लैक ऑफ वर्क को, तो ज्यादा काम करेंगे। तो उस समय ये सारे सब थ्योरी डेवलप हुए, एंड द मैनेजमेंट दैट वी यूज्ड टू अप्लाई देयर, that was not HR manager or HR management, that was labor relations and industrial relations or industrial relations. And for the one labor, it's like labor relation, and for entire industries employee, it was industrial relation. So then we moved to product concept and other concepts when we started having employees which are little more skilled and educated. And you can also see here it was like they are easily replaceable. But once a worker is skilled and educated, you won't find good amount of worker very easily, है ना। तो आपको उसको सेफ गार्ड करके रखना पड़ेगा, उनको भागने नहीं देना पड़ेगा। You need to cater their not only फाइनेंशियल नीड, बट उनके लाइफ नीड्स को भी समझना पड़ेगा, फैमिली नीड्स को भी समझना पड़ेगा। तो उस समय जो भी थ्योरीज यहाँ डेवलप हुई थी वो दे डिड नॉट वर्क, एंड दे स्टार्टेड falling short in this aspect. So then we started developing new management aspects, or new way to deal with employees, and then we called it personal management. सर लेकिन जब जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाला फेज था वहाँ पे HR का मेजर रोल था भी, क्योंकि मतलब वहाँ तो जैसे आपने भी बोला कि क्योंकि ये सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर होता था, और फिर आई थिंक मोस्टली काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता था, तो इतने ना बेनिफिट्स ना जॉब सिक्योरिटी हाँ, ऐसा तो भी मतलब कुछ उसमें होता था। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि उस समय HR नहीं था, उस समय लेबर रिलेशंस था। तो पर सर मैं वो पूछूं कि फिर मतलब इनका मेजर रोल था भी मतलब लेबर रिलेशंस का। कोर्स मेजर रोल था, बिकॉज आपका पूरा प्रोडक्शन लेबर्स पे टिका हुआ है। योर कंपनी इज नॉट मशीन इंटेंसिव, है ना। इफ योर कंपनी इज नॉट मशीन इंटेंसिव एंड लेबर आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ये प्रोडक्शन, तो रोल तो बहुत था। तभी तुम मतलब तुम्हें ऐसे तो नहीं आइडिया होगा, बट एट दैट टाइम एवरी गुड यूनिवर्सिटी वाज लॉन्चिंग दिस कोर्स, लेबर रिलेशंस एंड सोशल वेलफेयर, या अच्छा। लेबर एंड सोशल वेलफेयर। इंडिया में भी कई यूनिवर्सिटीज में कोर्स चलता था और 100% प्लेसमेंट होता था उस समय, समझे। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग दिस वाज द ओनली कोर्स जिसको बोलते थे कि ये प्लेसमेंट देता है। तो LSW के नाम से हमारे यहाँ ये कोर्स चलता था, हमारे यहाँ भी। क्योंकि उस समय इंडिया में भी ये चीजें आई कि भाई हमारे यहाँ भी फैक्ट्रीज बन रही हैं, है ना। टाटा बिरला ये सब अलग अलग फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, दे आर हायरिंग लेबर्स और एम्प्लॉइंग और लेबर्स व्हिच आर वर्किंग डेली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी काम कर रहे हैं। तो उनका बहुत रोल होता था। और उस समय के जो थ्योरी डेवलप किए हुए थे, है ना, उसको लोग ज्यादा पढ़ते थे, मतलब समझ रहे हो ना। बिकॉज बहुत बहुत फिक्स थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, मास्लो हायरार्की, इस तरह कई सारे थ्योरीज थे जो उस समय इंसेंटिव कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ डू टॉक विद द लेबर, जो की जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसको क्या बोलते हैं यूनियन, लेबर यूनियन को कैसे डील करते हैं, हाउ टू मतलब मैनेज एंड नेगोशिएट विथ लेबर्स, ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती थी। एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे हमारी कंपनी बैठ जाएगी, है ना। पर तो ये उस फिर ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली तो नहीं होते होंगे ना, ऑफ मतलब कोर्स जो। नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि इनको लेबर रिलेशन बोला गया, बट यहाँ पे आके उसको लेबर नाम नहीं दिया जा सकता, बिकॉज दे आर स्किल्ड, दे आर एजुकेटेड, है ना।
So you have to call them with the different name. So that's why we started calling them personal. ये ध्यान रही, पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल है, ठीक है। तो पर्सनल मैनेजमेंट, तो इसके इस तरह से मतलब इवॉल्व हुआ सेम मैनेजमेंट का, जो नाउ वी आर कॉलिंग इट पर्सनल मैनेजमेंट, और वी नेम्ड इट एज लाइक PMIR, ऐसा एक कोर्स बना, समझे, जो अभी भी इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज में चलती है। एंड इवन द TISSNET कोर्स है ना, was used to call, मतलब we used to call that course as personal management and industrial leadership, ठीक है। तो इसमें क्या है कि the need of the management or the goal of the management changed, because now you have to make them happy, you have to make them their work life balance good, और आप उसको प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट कंपनी के प्रोसेस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और थोड़ी कंपनीज भी, जैसे प्रोडक्शन प्लांट भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई, तो उसके वर्कर्स भी उस तरह से स्पेशलाइज हो गए, तो PMIR इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो थ्योरीज चेंज हुए, प्रैक्टिस चेंज हुई, है ना, रोल चेंज हुआ, फिर वो इनको सेफगार्ड, मतलब सोशल प्रोटेक्शन वगैरह की बात की जाने लगी ज्यादा, तो ये कंपनसेशन वगैरह पे कई काम होने लगे, तो ये नेक्स्ट चेंज था। और फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट या जो भी मार्केटिंग कंसेप्ट, उसके बाद हम वो नाम नहीं लिखेंगे, देन स्टार्टेड सर्विस इंडस्ट्री बहुत बढ़ने लगी, तुम्हें पता है इंडिया जैसी कंट्री में भी। और सर्विस इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जैसे IT या IT इनेबल सर्विसेज जो है वो राइज करने लगे, हॉस्पिटलिटी राइज करने लगा, ट्रेवल टूरिज्म राइज करने लगा। जब ऐसी कंपनीज बढ़ने लगी, तो उनका जो फर्स्ट लेयर जो एम्प्लॉय का भी होता था ना, जो सबसे बेस लेवल पे जो एम्प्लॉय होते थे, वो भी बीटेक होने लगे या फिर ग्रेजुएट्स होने लगे विद गुड टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स। समझ में आ रही है बात? Yes. So now the organization have started hiring more and more professional graduates for their base level employees. मतलब बेस लेवल मतलब सबसे बीच वाले। तुमको पता है ना, जैसे मतलब विप्रो और ये सब बड़ी कंपनी जो है, वो अपने एडमिन तक तो एक लेवल तक रखती है, बाकी सारे एम्प्लॉय जो होती है थर्ड पार्टी होती है, उनका बेस लेवल एम्प्लॉय ही प्रोफेशनल होता है, सो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब मेरा पॉइंट वो नहीं था, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपके ऐसे एम्प्लॉय होने लगेंगे, तो अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। नाउ दे आर हाईली वल्नरेबल इन टर्म ऑफ कि आप उनको खुश नहीं रखे तो कहीं और चले जाएंगे, बिकॉज अदर कंपनीज आर लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज एवरी नाउ एंड देन, एंड दीज पीपल आर नॉट इजिली रिप्लेसेबल, क्योंकि एक आदमी जब आपकी कंपनी में 3-4 महीने काम कर लिया, तो अगला आदमी उसी इफिशिएंसी से नहीं काम कर पाएगा। So now we had to call them not only personal but resource, and we started calling them human resource, ठीक है। And all those practices that we used to do here, है ना, in personal management, now getting involved, अब इनके मोटिवेशन का, इनके अलाइनमेंट का, बिकॉज सर्विस सेक्टर की कंपनीज हैं, दे आर नॉट responsible for just the part they are doing, they need to be in work in team, they need to work as a project delivery के मॉडल पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक टास्क साइन हो गया वही करते रहेंगे। they will have to bring ideas to improvise or customize the project in order to serve the customer। तो कई सारी एक्सपेक्टेशंस हमसे एम्प्लॉय से भी बढ़ जाती है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कंपनी से, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आज जो कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, कल को कुछ और भी तरीके से काम करना पड़ेगा। एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, all these new streams of HR management came into the picture। डाइवर्सिटी की बात होने लगी, MNCs बनने लगे, है ना, तो MNCs बनने लगे तो क्रॉस कल्चरल फंक्शंस पे बात होने लगी। ऑटिज्म मतलब ये रेस, जेंडर और कई सारे डिस्क्रिमिनेशन पे बात होने लगी। एंड ओपनिंग अ कंपनी, मैनेजिंग अ कंपनी विच इज बेसिकली मर्जर ऑफ 2 कंपनीज, वहां पे HR का रोल क्या होगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे आने लगे। एंड इसके पैरेलली वी स्टार्टेड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज एन स्ट्रीम, जो थोड़े सीनियर लेवल पे होता था, मतलब सीनियर टू HR मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट गोल्स को मतलब ये वर्ड्स उससे नहीं है, और डेवलपमेंट गोल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को मैनेज करने के लिए, एक पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का, कल्चर का जो भी हेरिटेज है उसको मान लो ट्रांसफॉर्म करना है, या नई कोई चेंज लाना चाहता है अपनी कंपनी में, यू वांट कि ऑल द एम्प्लॉयज शुड अडॉप्ट टू दैट चेंज, तो उस केसेस में हमें
सिर्फ एचआर मैनेजमेंट से काम नहीं चलता, वी हैव टू अप्लाई ओडी टेक्निक्स और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वेज टू ब्रिंग दैट चेंज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई तो ये 1-to-1 एचआर की बात नहीं रह गई। तो कई प्रैक्टिसेस, कई चेंजेस, कई प्रोसेस चेंजेस को इनकलकेट करने के लिए आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एचआर पे एक साथ काम करना पड़ता है। सो वी दीज टू डेवलप्ड इन लास्ट 30 years समझो, या 35 years में ऐसा डेवलप। नाउ इफ यू गो अहेड, है ना, यू विल फाइंड कि जैसे अब जो बहुत स्पेशलाइज्ड कंपनीज आर बेसिकली बीइंग स्पेशलाइज्ड, है ना, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है, ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही होता है कि समथिंग दैट दे डू कैन नॉट बी डन बाय अदर कंपनीज। तो उसके लिए उनके ऑफ कोर्स दैट विल बी डन बाय, मतलब दैट विल बी डन बाय ओनली विथ पीपल। तो दोज ह्यूमन रिसोर्स which have been your key attribute of that delivery, है ना, जो आप in order to deliver product or service to other company, वो जो human resource है now is very important for you, because you have made them that important, because they are doing or performing a very crucial role for your company, and basically you are getting all your output with their help only. So अब now this HR, है ना, like all other capital, has become a capital because it's not replaceable easily, है ना। कैपिटल में तो फिर भी एक तरह कैपिटल होता है कि कुछ खराब हो गया तो आप बदल लोगे, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वन अ पर्सन विल गो फ्रॉम अ टीम, तो एक हायरिंग अ न्यू पर्सन इन द टीम एंड देन मेकिंग हिम part of the team will be very difficult for the company. So now entire set of your employee is will be acting as capital of the company. और तुम देख रहे हो कि आजकल का टाइम जो है, we are studying a part of your entire human resource management as a human capital management. ठीक है, एक मिनट। So मतलब what I was saying कि आपके आंसर्स में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, and you must not satisfy तो नहीं बोलेंगे, you must not think that whatever you'll be learning in next 2 years of your MBA is the only thing that you have to learn in HRM, and you need to keep on learning, keep on adapting your knowledge in a way to challenge the new needs of HR management, or you need to cope up with the new needs of new challenges of HR management. इसके बाद एक और एस्पेक्ट है एचआर मैनेजमेंट का, which is called strategic HR. ठीक है, strategic HR is what? Can you tell me what is strategic? कुछ केस करके बताओ। मेरे Strategic, हिसाब से मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाना, जैसे अगर हम कोई कंपनी कंसिडर करें तो उसका कल्चर एक्चुअली पूरा एचआर बनाता है, कंपनी का विजन समझ के और उसको इनकॉर्पोरेट करके। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप अगर बेसिक्स बोले तो कैसे आप अपनी लीव पॉलिसी डिजाइन करते हो, कैसे आप अपना डेमोग्राफिक डिजाइन करते that's fine, that's a part of HR only. देखो, that's हो। not a strategic HR. Strategic HR आएगा when HR managers or HR department plays role in company's strategic decision. Strategic decision in order to in what domain company should work, है ना, what product the company should introduce, in what area a company should foray, है ना। तो these decisions, the strategic decisions, where they should open an company, है ना, इन सब decisions में HR के वैल्यू को रियलाइज करना एंड इन्वॉल्विंग HR इन दोज decisions, क्योंकि देखो सैलरी निगोशिएट करना, लीव पॉलिसी निगोशिएट करना, मतलब सॉरी लीव पॉलिसी बनाना, ये सब तो है ही HR का काम, वो तो इंट्रिंसिकली HR का रोल ही है ना। They are not just to implement whatever has been made, they are also there to create the policies, ठीक है। But strategic role वो रोल होगा जो कंपनी के स्ट्रेटजी में they have to play, है ना। कंपनी सारी स्ट्रेटजी जो है सिर्फ इसकी ह्यूमन रिसोर्स में नहीं होती ना, कंपनी रन्स फॉर अ गोल और ऑब्जेक्टिव दैट दे हैव टू डिलीवर। तो गोल मेकिंग, ऑब्जेक्टिव क्रिएशंस, ये सब चीजें जब एचआर के लोग उसमें कंट्रीब्यूट होने लगते हैं, कैसे क्यों जरूरी है। सो देखो, अगर एक कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि उसको बी से मर्जर करना है, सो नाउ दिस डिसीजन
should also be supported by HR people. अगर आप नहीं ध्यान देते हो and you neglect HR in that decision, तो it might be possible कि आपका merger जो है, despite all strategic advantages, है ना, that will get failed. ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी And सर। I'll give you an example. मैं भूल गया, एक पूरी केस स्टडी हमने पढ़ा था कि जिसमें एक दो एयरलाइंस जो है वो मर्ज किए, ठीक है, and since both of the airlines were having different culture among themselves, and they did not thought about, even आपको merger करना भी है तो you need to create strategic steps कि how do you realize all the steps or cover all the steps of merger or mixing those two companies together. इन्होंने एक ही बार मर्ज करके दोनों के एचआर को एक साथ कर दिया and that merger got failed just because of this reason. ये बात समझ में आ रही तुम्हें? यस सर। सो स्ट्रेटजिक एचआर अगर हम बात करें तो मेकिंग एचआर प्ले अ रोल इन कंपनीज स्ट्रेटजी मेकिंग so that they can talk with respect to the resources, human resources they have, and what resources they can build in future, and what are the potential they can create for the any strategic step. समझ आ रही बात? यस सर। थोड़ा कन्विंस नहीं लग रही हो तुम, बताओ। नहीं सर, मेरे को समझ आ गया ये। हाँ आई थिंक तो आपने एक मैं वो देख रही थी तो उसमें भी आपने बोला था कि जैसे जो ह्यूमन रिसोर्स, एक लेक्चर में देखी थी तो उसमें भी था कि जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज या रिसोर्सेज बोले